थोड़ा सा instructions I will just brief up. I will just request everybody to please switch off their mics as well as the video if possible for a better coverage of it. And we'll take your questions at the end of the session. So the main purpose of joining today is we'll give you an introduction on how the PhD coursework will run. हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. पहले तो मैं इसको थोड़ा सा बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस में रखूंगा, हिंदी एंड इंग्लिश, सो इट बेटर अंडरस्टैंडेबल एवरीबडी. We need to understand why this entire coursework is important, because this is a foundation of your PhD program. PhD is all about research. तो अब रिसर्च के कुछ टूल्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होता है which we need to follow, and that will help you throughout your 3 years of PhD, this foundation course which is called the coursework part. जो UGC ने इसको 2022 के अमेंडमेंट में बड़ा स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज किया, बिकॉज बहुत स्कॉलर्स हैं who are not too tech savvy, who are not into too much of computer research structure. तो उनके लिए उन्होंने बहुत फोकस किया कि जो इंटायर कोर्सवर्क वाला पार्ट है that has to be taken care in a very very constructive manner. So introduction to PhD coursework, आज हम थोड़ा सा because there are new scholars who have joined in, हम लोग थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में भी एक छोटी डिस्कशन करेंगे, कोर्सवर्क डिस्कशन करेंगे, जो अगले 200 hours which is required as per the UGC norms हम आपको कोर्सवर्क कराएंगे. उसमें क्या क्या कवर करेंगे, what will be the part of it, how that will benefit to your the entire PhD program that will run through the course. We'll take all your questions, discussions at the end of the session. तो उसको हम लोग उस तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे. ओके, हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज फॉलो नहीं करती, बिकॉज वी रन स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स, वी आर पार्टनर टू NSDC. सो हमारी जो यूनिवर्सिटी वन ऑफ its kind which is focusing on skills. So हम लोग we majorly highlight of this unique program. सबसे important part है कि we will focus on skills, we'll make it a very very interesting PhD for everybody. Boring नहीं रहता. We do lot of activities which will enhance your skills, enhance your processes, enhance your entire learning of the PhD throughout this next 3 years. Secondly, will give you a strong emphasis on live project, live lab and case studies. I will give you a small example. We are tying up with lot of government departments to get you as a PhD scholar. You can do their research as a live projects. You can study their entire thing where it comes to what is the requirement at in all these government organizations and all those things. We have also taken a lot of feedback from the industry that what kind of curriculum which we can pitch it across to our PhD scholars. उसमें हम लोग क्या करते हैं कि we invite industry experts on a very regular basis to give you lot of workshops. We also invite twice monthly, means in 2 months we invite one or foreign trainer to give you a small workshop on lot of things. We recently did was into a stress management during your PhD program. So हम लोगों ने इसको बड़ा यूनिक प्रोग्राम बनाया हुआ है. फ्यूचरिस्टिक डिलीवरी प्लेटफॉर्म रखा है इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क के लिए, स्टूडेंट्स टू लर्न कोलैबोरेट एंड डिस्कवर के लिए. उसके रेगुलर PhD स्कूल हैं उनके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी फेस्टिवल्स हैं, उसके लिए हम लोग ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स के लिए भेजते हैं. स्पेशल फोकस ऑन स्किलिंग स्टूडेंट्स. बेसिकली यही हमारा मेन है. जो हमारे anybody who wants to use our computer lab, we give a 24/7 access. So basically क्या है, we will not make this entire PhD program very maybe lethargic or boring structure. We have made it very very interesting. Throughout this entire 3 years you will learn a lot of things, lot of new things when it comes to live project, live labs, case studies and different other things. Goals of PhD बड़ा important है. देखिए, will only divide into 7 part. This understanding research का ecosystem समझना बड़ा जरूरी है. PhD का structure and regulations क्या क्या हैं, that we
हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि कोर्स वर्क क्या रहता है, क्रेडिट रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर्स क्या है, एथिक पॉलिसीज में आपको बताऊंगा सारा। रिसर्च को हाउ डू वी नीड टू प्रिपेयर द रिसर्च इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका कोर्स वर्क में कंप्लीट होता है। उसके बाद सुपरवाइजर स्कॉलर कोलैबोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू कवर इज कि आप सुपरवाइजर और स्कॉलर की कोलैबोरेशंस को कैसे करते हैं। उसके लिए हमने बहुत अच्छा मेथड बनाया है, कोई और यूनिवर्सिटी नहीं कर रही। we do a monthly session between the supervisors and the scholar and the research department to see कि कहाँ तक we have completed the entire thing, क्या pending है, what hand holding do you require from our side, administrative services, library access you get through identity card. We promote ethical and responsible research. The research has to be quality with proper responsible conduct. Personal and professional skill development means obviously we'll teach you tools, writing, communication, software training, जो भी आपको मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा। हमारा गोल यही है कि entire PhD ecosystem, research ecosystem has to be formally, structurally, properly done. की फंक्शनरी थोड़ा सा आपको बताता हूं बिकॉज दिस विल बी रिक्वायर्ड। Sardar Nirmal Singh Rayat is the Honorable Chancellor. Professor A.S. Chawla is the Vice Chancellor. All your documents and the entire eligibility check is done by Professor B.S. Satyal, who is the Registrar. Dr. Navneet Chopra is Dean Academic Affairs. We have been since day one have been guided by Dr. Vikramjit, जो मतलब he is a pillar, she is the pillar of the entire PhD cell. वो ही maximum she is taking care of. Mr. Vimal Malhotra is again the CEO and Surinder Paulji is Chief Operating Executive, who is LT. These are the key functionaries of the entire university. Awareness of administrative services थोड़ा जल्दी कवर करूंगा because we will switch over to the coursework part. जितना भी आपका academic administrative support है that is with the registrar office, Dr. Satyal के अंदर है, जिसके अंदर एनरोलमेंट, सर्टिफिकेट्स, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, डीन रिसर्च सेल में पीएचडी के रूल्स, आरएससी प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस विद एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। देन वी गिव सपोर्ट यू थ्रू रिसर्च सपोर्ट सर्विस। लाइब्रेरी आपके लिए ओपन है, एथिक्स कमेटी है, अगर आपने कोई ह्यूमन एंड एनिमल पे रिसर्च करना है उसके लिए एथिक्स कमेटी होगा। आईपीआर सेल है, अगर कोई पेटेंट फाइलिंग करवाना चाहता है, so that is IPR cell for that. Research funding office है हमारे पास, which is very important कि if some scholar wants funds to be inducted to their research, वो हम proposal रखते हैं, grants आते हैं through lot of government channels, so उसके लिए अलग department है। अगर आप IT digital services की बात करते हैं, if anybody wants an official communication from the university side through an official ID, we can do that. LMS आपको मिलता है which is on the university portal, Wi-Fi and lot of network credentials, technical help desk है, student welfare support के लिए counseling and mental health support is very important. इसके लिए आपको एक dedicated number भी दिया जाएगा जिसमें anytime you are feeling stressed about your entire PhD program, do call, they will tell you how to resolve your entire matters. कभी आपकी thesis delay हो रही हैं, कभी आप लेट्स से आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है where mentally you are not able to cope up with the entire program, so this is very important support. Administrative मैंने आपको बता ही दिया है. Campus infrastructure is open for all the scholars anytime you want to come across, use library infrastructure and all those things is open for everybody. And ultimately the policy and guidelines, these are all administrative services for the entire PhD team and support. Promoting ethical and responsible research, इसको मैं ज़्यादा जल्दी में कंप्लीट करूंगा. एकेडमिक इंटीग्रिटी को हम फॉलो करते हैं, एथिक्स की अप्रूवल रहेगी, रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट रहेगा इंटायर हमारी डेटा का, और हम जिससे हम डेटा ले रहे हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट रहेगा. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम फॉलो करेंगे इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैनर. ओके, अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है व्हाट इज ओवरव्यू ऑफ टुडेज सेशन इज. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज कोर्स वर्क. दूसरा पॉइंट करेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जितना फाउंडेशन
आपकी इंटायर पीएचडी के लिए होगा वो आज के सेशन में विल कवर। उसका स्ट्रक्चर एंड इवैल्यूएशन कैसा है एंड अल्टीमेटली उसका एक्सपेक्टेड एंड आउटकम्स क्या क्या रहेंगे। सो if you want to grab a pen and paper you can do that, if you want to write it down you can do that. इसका एक रिकॉर्डेड वर्जन भी हो रहा है सेशन का, विल सेंड यू द रिकॉर्डेड लिंक्स इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन फॉर दैट। अब मीनिंग क्या है कोर्स वर्क का, अगर मैं इसको लेमैन भाषा में बात करूं तो आपको हम पीएचडी की रिसर्च कैसे प्रिपेयर करनी है, सो वी आर टीचिंग यू इन दिस पीएचडी कोर्स वर्क पार्ट. So basically it is mandatory for academic component of PhD program. This is the only academic component which will be part of your PhD program, which means आपने जब आपने PhD start करनी है and end करनी है, this is the only academic mandatory component which will be coming across to you. It must be successfully completed before initiation of full research scale research work. होता क्या है कि ये जो इंटायर प्रोग्राम है that has to be must be successfully completed before initiation of full scale research work, which means आपको ये क्लियर करना पड़ता है 6 months का कोर्स वर्क. इसका एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को आप जब क्लियर करते हैं उसके बाद आप अपना रिसर्च के लिए आगे प्रोसीड करते हैं. दूसरा, सर्व एज क्वालिफाइंग स्टेट फॉर कंफर्मेशन ऑफ पीएचडी रजिस्ट्रेशन. According to the UGC norms in 2022, which was the last UGC norms, ये क्वालिफाइंग स्टेज होता है, इसके बाद आपकी पीएचडी रजिस्टर होती है, which means आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है कोर्स वर्क का. उसके बाद आप अपने टाइटल को, अपने गाइड को एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के थ्रू आप वो पीएचडी रजिस्टर करते हैं. फाउंडेशनल रोल इन डॉक्टरल रिसर्च. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक ब्रिज एक्ट करता है आपके पोस्ट ग्रेजुएट लर्निंग और इंडिपेंडेंट रिसर्च में. जो हमारा लेट से आई डिड एमबीए फॉर एग्जांपल, तो मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएट लर्निंग में आई डिड मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट करिकुलम है. अब क्या होता है, जब आप इसको कंप्लीट करके इमीडिएटली पीएचडी मैनेजमेंट में आप चले जाते हैं, विच मीन्स you are now an independent researcher. It is nothing to do with any kind of strict curriculum, any kind of strict examination or anything subjected to that. It is an independent research. तो होता क्या है, ये एक ब्रिज करती है आपकी लर्निंग को फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट टू इंडिपेंडेंट रिसर्च. रिसर्च कैसे करनी है, स्ट्रक्चर को कैसे सेट करना है, मेथड्स क्या क्या करने हैं, उसको हम सिखाते हैं. दूसरा, आपको कंसेप्चुअल एंड मेथोडोलॉजिकल बेसिस को स्ट्रक्चर करती है, आपके इंटरेस्ट को जनरेट करती है, रिफाइन करती है रिसर्च इंटरेस्ट को, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को स्ट्रक्चर करती है, और आपके ट्रांजिशन इनटू रिसर्चर माइंडसेट. अभी क्या होता है, जब आप पीजी कंप्लीट करते हैं या एमबीए करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपका रिसर्चर माइंडसेट नहीं होता, आपका अभी एकेडमिक माइंडसेट रहता है. तो हम उसको धीरे धीरे रिसर्चर माइंडसेट में कन्वर्ट करते हैं. So उसके लिए this coursework is a foundation for making your mindset as a researcher. A regulatory framework, everything is under UGC guidelines as per University Grant Commission. Mandatory हर यूनिवर्सिटी को होता है ये फॉलो करना. It is not our university, every university has to follow the coursework part, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, everybody has to follow that. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, फर्स्ट 3 पार्ट्स होते हैं इसके, विच इज फर्स्ट इज द रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेकंड इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स वर्क, एंड पब्लिकेशन एंड एथिक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. पहला मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी में कि आपने रिसर्च कैसे करने हैं, टूल्स क्या क्या यूज करने हैं, एंड हाउ यू विल कैरी फॉरवर्ड द एंटायर एनालिसिस एंड एवरीथिंग. उसके बाद आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स वर्क, जो आपने अपने मास्टर्स में किया हुआ है उसी बेस्ड पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है. थर्ड इज रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी एथिक्स में आप ये रिसर्च में अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट हैज टू गो थ्रू द एथिकल कमिटी. एथिकल कमिटी क्या होता है कि आपने अगर लेट से किसी डेटा कलेक्ट करना है, कोई इंटरव्यूज लेने हैं, या आपने कोई इफ आई हैव पीएचडी इन एमएलटी, या उन्होंने कोई लैब टेस्टिंग करनी है या एनिमल टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए एक एथिक्स अप्रूवल होती है
कि ड्यूरिंग दिस रिसर्च प्रोग्राम किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा और उसमें कोई भी ह्यूमन की प्राइवेसी या एनिमल कोई भी चीज इस इंटायर पीएचडी प्रोग्राम में हर्ट नहीं होगा. सो वी टेक एन एथिकल कमिटी एंड वी टेक डू इट अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबली. उसके बाद आता है दिस इज द मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको बताया. स्किल डेवलपमेंट थ्रू द कोर्स वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे हम बहुत फोकस करते हैं. बीइंग अ स्किल्स यूनिवर्सिटी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग्स को फोकस करते हैं, रिसर्च डिजाइंस को, डेटा कलेक्शन कैसे करनी है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस का क्या रखना है, एकेडमिक राइटिंग कॉम्पिटेंसी को हम लोग बहुत फोकस करते हैं. एंड इसको रिसर्च पेपर्स को कैसे स्ट्रक्चर करना है, थीसिस कैसे लिखनी है, वो सारा हम लोग इसमें कवर करते हैं. ये मैंने ऑलरेडी कवर किया है, विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम. रिसर्च स्किल्स आपकी इंप्रूव होती हैं, एकेडमिक राइटिंग के लिए फोकस करेंगे. कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलर्स जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बिकॉज विल फोकस ऑन देम ऑल्सो कि आप कम्युनिकेट कर पाए विद योर गाइड, विद योर peer group, उनके साथ कम्युनिकेट कर पाए, एंड यू गिव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू दैट. एंड सॉफ्ट स्किल, टाइम मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, मुझे बड़ा फोकस करते हैं कि आप देयर आई हैव मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स आर वर्किंग, सो आपका वर्क लाइफ बैलेंस को डिस्टर्ब ना करके इस पूरे प्रोग्राम को वेल डिफाइन करके हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं. So I go on importance of first coursework, which I have already cleared. Bridging gap between previous education and advanced research, we'll do that. We'll help you and identify research problem, understanding research design, developing analytical thinking, and prevent common research errors. बड़ा important है. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसको बहुत फॉलो करती है कि कॉमन रिसर्च एरर्स ना आए. आपकी जो थीसिस है दैट हैज टू बी वेरी क्वालिटी, क्योंकि आज के बाद जब आप अपनी पीएचडी कंप्लीट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी थीसिस है. जो आप थीसिस सबमिट करेंगे, अपनी रिसर्च करेंगे, उसकी कितनी क्वालिटी है, उसी से आपका स्ट्रक्चर सेट होगा. उसी का टाइटल, आप क्या टाइटल किस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्या वो नीश एरिया है, क्या वो अचीवेबल है, क्या नहीं है, वो दैट विल बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम लोग ट्रेन करेंगे स्कॉलर्स को रिसर्च मेथडोलॉजी में, डाटा एनालिसिस में, एकेडमिक राइटिंग में, टू बिल्ड एबिलिटी टू क्रिटिकल इवैल्यूएट लिटरेचर. ये क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक टाइटल लिया, तो उसके पीछे पहले ही रिसर्च हुई होती है. देयर इज नो टाइटल ऐसा जिसके पीछे रिसर्चेज ना हुई होती हैं. तो हम लोग आपका जितना भी लिटरेचर, प्रीवियस लिटरेचर हो, उसको कैसे इवैल्यूएट करना है, उसमें उसको क्रिटिसाइज करना है या उसके हमने रेफरेंसेस लेने हैं, वी कवर दैट. वी इवैल्यूएट योर इंटायर लिटरेचर ऑफ द टाइटल. रिसर्च गैप्स क्या क्या हैं वो हम क्लैरिफाई करते हैं. एंड एथिकल रिसर्च प्रैक्टिसेस पे बहुत फोकस करते हैं. जो इंटायर रिसर्च है वो एथिकली कंप्लीट होनी चाहिए. अब हमने एक कोर्स वर्क को यूनिट वाइज डिवाइड किया हुआ है, विच वी से दैट कि हम लोग करते हैं, कवर करते हैं. पार्ट ऑफ यूनिट होता है, जैसे रिसर्च मेथडोलॉजी की बात करूं, उसके अंदर हम फोकस करते हैं रिसर्च डिजाइन एंड कंसेप्ट्स की, कि हम लोग रिसर्च में क्या क्या प्रोसीजर से रिसर्च करेंगे, उसका क्या डिजाइन रहेगा, क्या कंसेप्ट रहेगा. तो मेजरली ये क्लासेस डॉक्टर नवनीत लेते हैं, जो अभी इस साल बेसिकली कौन अलाइन होंगे, बट यूजुअली इट इज टेकन बाय डॉक्टर नवनीत. शी इज हेडिंग द एकेडमिक्स पार्ट. उसके बाद लिटरेचर रिव्यू आता है, जो मैंने आपको बताया, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्चेज हैं उस पर हम एनालिसिस करते हैं, उसका रिव्यू एंड गैप आइडेंटिफिकेशन करते हैं. फिर डाटा एनालिसिस करते हैं कि अगर हमने कोई डेटा पिक किया है, फॉर एग्जांपल अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज का ही डेटा पिक किया है या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट उसका डेटा पिक किया है, तो हम उसी के एनालिसिस करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स में. एकेडमिक राइटिंग में हम लोग पेपर्स एंड थीसिस राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि आर्टिकल्स कहाँ सबमिट होंगे, पेपर्स हम कैसे सबमिट करेंगे. देयर इसके पीछे लॉट ऑफ फियर इज देयर कि पेपर सबमिट ही नहीं होता, पेपर हम कैसे करेंगे. सो वी आर फोकसिंग
in your coursework and even after your coursework की paper writing will be given the first preference, ताकि till your time of completion हम लोग पेपर राइटिंग को प्रॉपरली कंप्लीट करें, अच्छे जर्नल्स में डालेंगे, वेयर जब आप फाइनल अपनी थीसिस कंपाइल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहता है कि आपके जर्नल्स भी अच्छे हैं, थीसिस भी हाई क्वालिटी है, सो दैट इट टेक्निकली गेट्स प्रॉपर वेटेज। रिसर्च एथिक्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एथिकल प्रैक्टिसेस को हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, अब आते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, अदरवाइज इट विल बी एक्सटेंसिव क्लासेस रहेंगे बेसिकली ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, एथिक्स एंड योर कोर सब्जेक्ट, बट इज एन ओवरव्यू कि आप उसमें कवर क्या क्या करेंगे। सो वी हैव टाइप ऑफ रिसर्च, उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, मिक्स मेथड होता है। ये भी इसमें नहीं जाएंगे बिकॉज दिस पार्ट ऑफ योर मेन क्लासेस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। होता क्या है, दीज आर टाइप ऑफ रिसर्च, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स मेथड होता है। रिसर्च डिजाइन में अगर जाते हैं तो देर आर सम एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है। अब मैं आप छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, फार्मेसी है फॉर एग्जांपल, या फार्मास्यूटिकल साइंसेज या फार्माकोलॉजी है, सो दे विल ऑलवेज गो फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन यूजुअली। फिर आपका एमएलटी है या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, दे विल ऑल गो फॉर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स। अब उसके लिए वी हैव अ रिसर्च कमिटी, एथिकल कमिटी भी है, तो उसको हम लोग फोकस है, डिस्क्रिप्टिव होता है कि देयर आर सम रिसर्च डिजाइन्स वेयर आप डेटा कलेक्शंस पे ज्यादा फोकस करते हो, उसकी डिस्क्रिप्टिवनेस पे ज्यादा फोकस करते हो। एक्सप्लोरेटरी हो गया, एग्जिस्टिंग डाटा डिजाइन्स पे आप काम करते हो, एग्जिस्टिंग थ्योरीज पे काम करते हो। उसके बाद की कंसेप्ट्स बेसिकली हैं, इसको हम usually when you go for research methodology classes it will be explained to you in a very very proper manner. When it comes to key concept, variables हैं, hypothesis हैं, sampling कैसे करनी है, and उसको कैसे हमने identification कैसे करनी है। So ये unit 1 research methodology का part रहता है, जो आपको consecutive जब आपका next schedule of classes आएगा then you can start up this. Literature review क्या होता है? अब लेट से मेरा एक लिटरेचर रिव्यू है, फॉर एग्जांपल मैंने एक टॉपिक फाइनलाइज किया है। लेट से आई हैव फाइनलाइज्ड अ टॉपिक कॉल्ड रोल ऑफ एआई इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लेट से मैंने एक पीएचडी मैनेजमेंट का टाइटल किया है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं उसमें जो एग्जिस्टिंग रिसर्चेज हैं उनको स्टडी करूंगा, एग्जिस्टिंग बुक्स को स्टडी करूंगा, एग्जिस्टिंग ऑथर्स को स्टडी करूंगा कि उनको ये इन्होंने इनके अगेंस्ट क्या अंडरस्टैंडिंग करी है, क्या उनके पेपर्स हैं, क्या उनकी थ्योरी है। सो आई विल डू दैट। उसके गैप्स क्या क्या हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो पहले रिसर्चेज हो रखी हैं उसमें गैप क्या आया वो बताऊंगा। उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, स्कूपस, वेब ऑफ साइंस, गूगल स्कॉलर, सारे पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें आपको आर्टिकल्स मिलते हैं। टेक्निक्स क्या क्या यूज करते हैं, थीमेटिक रिव्यूज हैं, सिस्टमैटिक रिव्यूज हैं, ये आपको लिटरेचर रिव्यूज में आपको सारा समझ में आएगा। रेफरेंसिंग स्टाइल है, एपीए, एमएलए, शिकागो, ये सारे रेफरेंसिंग स्टाइल्स होते हैं। ये कुछ नहीं होता, दिस इज अ फॉर्मेट जिसके हिसाब से आपने रेफरेंसिंग को अलाइन करना होता है। फिर आता है डाटा एनालिसिस टूल। अब डाटा एनालिसिस टूल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर इंटायर पीएचडी प्रोग्राम। अब अगर आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो आप एसपीएसएस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, आर करते हैं, पाइथन यूज करते हैं, तो वो आपको इट इज नथिंग, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दैट। एनालिसिस कैसे करना है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, उसमें सॉफ्टवेयर में आप डेटा डालते हैं, वो आपको रिजल्ट दे देता है। सेम इन केस ऑफ एसपीएसएस आपको प्रोजेक्शंस देता है। एक्सेल, मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट एक्सेल। आर, पाइथन हो गया। सो दीज ऑल हम आपको ड्यूरिंग योर इंटायर प्रोसेस हम आपको बताएंगे हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसके लिए एनवीओ है, कंटेंट एनालिसिस है, दीज आर ऑल एनालिसिस बेस्ड सॉफ्टवेयर जो कि हम आपको ड्यूरिंग दिस इंटायर कोर्स वर्क विल टीच यू दैट। फिर डाटा कलेक्शन कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है।
दो तरह के डेटाज होते हैं, मैं आपको ब्रीफली समझाता हूँ। एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में जिसमें सर्वेज हो गए, इंटरव्यूज हो गए, और मे बी आपका एक्सपेरिमेंटल हो गया। और होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जिसमें आप इंटरव्यू भी नहीं लेते, आप सर्वेज भी नहीं करते, आप जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज है, एग्जिस्टिंग स्टडी है, उसी को क्रिटिसाइज करके अपना एनालिसिस करते हैं। तो दो तरह के डाटा कलेक्शन होते हैं। हम ये प्रेफर करते हैं जो स्कॉलर टू मच ऑफ टाइम डेडिकेट नहीं कर पाता व्हेन इट कम्स टू डाटा कलेक्शन मेथड्स में, सो वी गाइड देम टू टेक सेकेंडरी डेटा। एंड जो wants to do core live data connection, so we say that you take interviews and survey. So इसमें हमने दो ही इसमें डिवाइड किया हुआ है। so we make it is flexible for everybody to choose either they go for secondary data or the primary data। और ये बैकबोन है आपकी रिसर्च के लिए। बैकबोन कैसे है कि अगर आप कहते हैं कि डेटा कलेक्ट करना है, तो हाउ डू यू कलेक्ट दैट डाटा, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, या आप डेटा नहीं कलेक्ट करना चाह रहे तो उसी पे आपका टाइटल बेस्ड होगा। तो ये हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं। उसके बाद हम करते हैं एकेडमिक राइटिंग। उसका शुरू करते हैं एकेडमिक राइटिंग। स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर कैसे बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, इंट्रोडक्शन कैसे बनेगी, मेथडोलॉजी क्या करना है, रिजल्ट्स कैसे करेंगे, कंक्लूजन्स कैसे करते हैं। तो एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो आपको टाइम टू टाइम बताया जाएगा ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ क्लास। बट आपको जितना भी स्ट्रक्चर है दैट विल नॉट बी बर्डन ऑन योर हेड। अंडरस्टैंड, हम लोगों ने इसको डिजाइन ही इसी तरीके से किया है कि आपको लेट्स से में इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में you have to make maybe in your thesis make around 20 pages। so उन 20 pages की introduction अगर आपने बनानी है, तो we have 3 months to 4 months to make these all 20 pages। तो उसको कैसे डिफाइन किया हमने, बहुत वेल डिफाइन करके आपका इंटायर स्ट्रक्चर बनाया है, ताकि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना होके आप इसको बहुत स्ट्रक्चरली कंप्लीट कर सकते हैं, एंड विद क्वालिटी ऑल्सो। उसके बाद थीसिस राइटिंग टेक्निक्स, उसके लिए हम एक अलग से वर्कशॉप्स करते हैं, जिसके अंदर हम लोग फोकस करते हैं कि आप थोड़ा सा वर्ड एक्सेल को स्टडी करें। वर्ड में कैसे आपने थीसिस को अलाइन करना है, उसमें क्या क्या नॉर्म्स होते हैं एज पर द यूनिवर्सिटी, उसको थीसिस को कैसे अलाइनमेंट करेंगे हम, कैसे कंप्लीट करेंगे फाइनल, उसको कंपाइल कैसे करेंगे। सो वी कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट। फिर अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, ये हम डे 1 से फॉलो करते हैं। प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म क्या होता है, यूजीसी क्या बोलता है कि आपकी जो थीसिस है दैट हैज टू बी डिस्टिंक्ट, दैट हैज टू नॉट शुड बी कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर। क्योंकि हम रिसर्च कहते हैं और आप डॉक्टर बनेंगे कल पर्टिकुलर रिसर्च के, तो आपकी कहीं से कॉपी नहीं होनी चाहिए। तो प्लेजरिज्म के लिए देयर आर सॉफ्टवेयर, जब आप थीसिस डालें या उसके अंदर साइनॉप्सिस अपलोड करेंगे, तो उसमें ये पॉइंट टू पॉइंट क्लैरिटी आ जाती है कि कहाँ से कॉपी किया हुआ है। और यूजीसी नॉर्म्स ये बोलता है कि हम थीसिस आपकी तब लेंगे अगर आपकी प्लेजरिज्म इज बिलो 10%, मींस इट 90% शुड बी योर इंडिविजुअल रिसर्च। तो दिस विल टेक केयर ऑफ फ्रॉम द डे 1 ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ योर रिसर्च। फिर प्रॉपर साइटेशन प्रैक्टिसेस, मतलब जहां से हम साइटेशन, मतलब जहां से हम रेफरेंसेस ले रहे हैं या जो बुक्स हम स्टडी कर रहे हैं, जो रेफरेंसेस ले रहे हैं, उसको हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें और उसकी प्रैक्टिसेस को बहुत स्ट्रक्चरली फॉलो करें। बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च एथिक्स। 3 मेन पिलर्स हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये 3 मेन पिलर हैं ऑफ एथिकल प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स, जिसमें प्लेजरिज्म को हम अवॉइड करेंगे, डेटा मैनिपुलेशंस को बिल्कुल नहीं डालेंगे कि हम लेट्स से डेटास को, जो एक्चुअल डेटास नहीं है उसको हम लोग मैनिपुलेट करें, तो वो हम ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल फॉलो करेंगे ऑल यूजीसी प्लेजरिज्म गाइडलाइन, जो मैंने आपको बताया बिलो 10% इट द यूजीसी कहती है, तभी वो इस आपकी थीसिस को यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी और फाइनली आपको डिग्री अलॉट करेगी। दूसरी बात, आजकल क्या हो गया कि देयर इज अ टूल ऑफ प्लेजरिज्म ऑल्सो एंड देयर इज अ टूल ऑफ एआई ऑल्सो। तो हम कोशिश यही करते हैं कि डे 1 से हम लोग इंटरनेट सोर्सेज से डेटा लें, बट वी मेक इट, वी राइट इट डाउन ऑन इन आवर ओन लैंग्वेजेस, ताकि वो एआई बेस्ड भी ना रहे। एंड ऑथरशिप एंड पब्लिकेशन एथिक्स,
इसके लिए भी हम फॉलो करेंगे। सो रिसर्च एथिक्स को हम लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, जिसके अंदर हम मेक श्योर करते हैं कि कंसाइज एंड स्ट्रक्चर्ड रहे और प्रॉपरली एथिक्स को हम फॉलो करके आगे चलें। अब आता है व्हेन यू फिनिश द इवैल्यूएशन, इसकी कैसे कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनल असेसमेंट होती है, असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस। क्या होता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल 3 क्लासेस करी रिसर्च मेथोडोलॉजी की, उसके बाद आपको असाइनमेंट देंगे, यू हैव टू प्रिपेयर दैट एंड यू हैव टू सबमिट इट टू द रिसर्च डिपार्टमेंट। वो इंटरनल इवैल्यूएशन में काउंट होता है। हम प्रेजेंटेशंस भी कराते हैं, प्रेजेंटेशंस जिसमें यू गिव एन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन टू द रिसर्च डिपार्टमेंट एंड कंसर्न टीम। उसके बाद वो इवैल्यूएट करते हैं योर प्रेजेंटेशन एंड देन दे गिव एन असेसमेंट फॉर दैट। उसके बाद आपका एक फाइनल कोर्स वर्क एग्जाम होता है आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स वर्क। उसमें दैट यू हैव टू कम टू द यूनिवर्सिटी एंड गिव दिस एज अ रिटन एग्जामिनेशन। दिस उसमें भी तीन ही कवर होते हैं, विच इज योर मेथोडोलॉजी, एथिक्स एंड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया एज पर यूनिवर्सिटी एंड यूजीसी नॉर्म्स रहता है 50% एंड अबव चाहिए होता है। इवैल्यूएशन सिस्टम का ये बताता हूँ, बट इस इवैल्यूएशन सिस्टम को भी हमने बड़ा डिफरेंशिएट किया बाकी यूनिवर्सिटी से। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कुछ पार्ट आपकी असेसमेंट असाइनमेंट्स का भी रखते हैं, विच यू कैन मेक इट एंड सबमिट इट अक्रॉस। इसमें 20 मार्क्स आपके एमएसटी रहता है, विच इज कॉल्ड मंथली टेस्ट, जो वो कोर्स वर्क एग्जाम से पहले होता है, which you have to submit it across when you come, you write it down and submit it across to the university. तो ये एक बड़ा इवैल्यूएशन सिस्टम भी बड़ा अच्छा रखा हुआ है, एज पर यूजीसी नॉर्म रहता है। जैसे ही आप इसको क्लियर करते हैं, देन योर डिग्री इज रजिस्टर्ड। तो कोर्स वर्क में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं इसको भी देखूं, इवैल्यूएशन सिस्टम को भी, मेरे को बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आती हैं कि सर कोर्स वर्क का एग्जाम क्लियर ना हुआ तो क्या करेंगे। तो देखिए, we have to understand, you all are everybody is all structured, already done PG, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है। सो हमने ये डिजाइन इसी तरीके से किया है कि इवैल्यूएशन सिस्टम भी थोड़ा सा लीनियंट रहे, बट अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स रहे। आपकी इंटरैक्टिव सेंस को ज्यादा इंप्रूव किया है कि आप उसमें इंटरैक्टिव रहें, प्रेजेंटेशंस के थ्रू रहें या असाइनमेंट्स के थ्रू रहें। सो इंटरैक्टिव सेंस को हम लोगों ने उसको इलेबोरेट किया हुआ है। तो एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स हम उसको बहुत स्ट्रक्चर्ड और सॉलिड बनाते हैं, ताकि आपको ये भी इवैल्यूएशन सिस्टम भी फियरफुल ना लगे। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आपको सुपरवाइजर असाइन होते हैं, यूजुअली हम कोर्स वर्क एग्जाम से पहले ही आपको सुपरवाइजर अलॉट कर देते हैं। व्हेन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी और एथिक्स की क्लासेस खत्म होती है, देन कोर सब्जेक्ट की क्लासेस आती हैं, तो पहले रोल ऑफ सुपरवाइजर आ जाता है। वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, कम्युनिकेशन विद द सुपरवाइजर। You understand, supervisor is a person who has already done this PhD, who is into academics, who is teaching. वो आपके साथ आपको ये PhD कराने में हेल्प करते हैं। नाउ प्रॉब्लम कहाँ आती है, वेयर यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर आइडियाज टू योर सुपरवाइजर। मेरे पास एक छोटा सा केस आया, ही वांटेड टू डू हिज PhD in astrophysics and ultimately the guide was from a physics background. Now वो एक कम्युनिकेशन गैप इतना इंक्रीज होता रहा कि वो जो आपका स्कॉलर समझाना चाह रहा है, वो गाइड को उसका फीडबैक नहीं समझ आ रहा, वो गैप बढ़ता रहता है। सो विच दैट इज वेरी इट इज इंपॉर्टेंट कि जो आपका आइडिया है, जो आपका टाइटल है, जो आप करना चाहते हैं, वो आपके गाइड को समझ आना चाहिए, उसकी एप्लीकेबिलिटी सॉलिड होनी चाहिए। क्योंकि गाइड आपको पीएचडी करना सिखाएगा, प्रोसेस को फॉलो करना सिखाएगा, स्टेप्स सिखाएंगे, बट आपने किस आइडिया पे करनी है, क्या टॉपिक को सिलेक्ट करना है, वो आपके दिमाग में उसका एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। उसको डिजाइन टॉपिक को कैसे करना है, वो गाइड आपको हेल्प करेंगे। उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि देयर आर फ्यू टर्म्स लाइक डीलिमिट करते हैं उसको, या आपका डेटा आपने कहाँ से पिक करना है, उस वो इजी रहेगा या डिफिकल्ट रहेगा, वो स्टडी रहती है। सो
टाइटल आपको वो टाइपिक ऐसे बना देंगे ताकि आपका जो आइडिया है वो प्रॉपरली एज पर योर पीएचडी टाइटल वो सेलेक्ट हो जाएगा. सो अंडरस्टैंड रोल ऑफ सुपरवाइजर विल स्टार्ट विद प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द सुपरवाइजर. बहुत ऐसे स्कॉलर्स होते हैं जो गाइड को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते या सुपरवाइजर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि मैंने करना है क्या एक्चुअल में. सो दैट इज वेयर वी फोकस कि आप अपने टॉपिक सिलेक्शंस पे फोकस करें और रिसर्च डिजाइन पे. रिसर्च डिजाइन कुछ नहीं है. अगर आज की बात बोलें, मैंने आज पीएचडी स्टार्ट करना है, तो मैंने अगर एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग में, तो मैं एक सोचता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में करूंगा और मैं देखता हूँ कि बाइंग बिहेवियर पे करूंगा. तो मेरे पास एक बेसिक टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग है, मेरा इंटरेस्ट है और मैं क्या रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं बाइंग बिहेवियर में करूंगा. अब मैं जब ये डिस्कस करता हूँ अपने सुपरवाइजर के साथ, तो सुपरवाइजर उसको कैसे चेंज करेगा, वो उसको ऐसे चेंज कर देगा, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स इन बाइंग बिहेवियर ऑफ एज ग्रुप 18 to 25 इन द लोकेशन ऑफ मोहाली. सो उसको आपके आइडिया को वो एक टॉपिक में डिजाइन करके उसी को वो इंटीग्रेट कर देगा. सो ये गाइड का एक पर्टिकुलर रोल होता है. सो योर कम्युनिकेशन विद गाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ही मॉनिटर्स योर इंटायर एकेडमिक प्रोसेस, तो उसको फीडबैक देना जरूरी है. बड़े स्कॉलर्स बोलते हैं कि डिले होती है यूनिवर्सिटीज में. उस डिले होने का मेजर कारण यही है कि हम एकेडमिक प्रोग्रेसेस को समझते ही नहीं है. अगर गाइड ने बोला कि हमने 6 मंथ्स में लेट से हमने इंट्रोडक्शन और 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, which is very minimum. आपने 40 पेजेस ऑफ योर थीसिस कंप्लीट करने हैं इन 6 मंथ्स इज नथिंग. तो उसका क्या एकेडमिक प्रोसेस है, हम कैसे कर रहे हैं, दैट इज वेयर यू हैव टू टेल टू योर सुपरवाइजर सो दैट ही और शी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द एकेडमिक प्रोसेस प्रोग्रेस यू हैव ऑलरेडी डन. उसके लिए हमने एक अच्छा मेथड बनाया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया. वील डू एन मंथली सेशन ऑनलाइन वेयर वील अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या क्या गैप्स आ रहे हैं, अगर उस गैप्स को कंप्लीट करना है तो कैसे करना है. फीडबैक को प्रोवाइड करिए अपने गाइड्स के साथ. ओपन एंटी फीडबैक दीजिए कि मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसको क्या बेटर है. जब तक वो आपका फीडबैक ही नहीं लेगा सुपरवाइजर, ही और शी विल नॉट बी एबल टू गिव यू गाइडेंस. एंड पब्लिकेशन सपोर्ट, हम लोगों ने ये बहुत फोकस किया है. आई डोंट नो व्हाट अदर यूनिवर्सिटी डू, कि जो पब्लिकेशंस हैं दैट इज फोकस्ड इन अ वेरी प्रॉपर वे इन द डे 1 टू स्टार्ट अप द एंटायर प्रोग्राम. तो हम लोगों ने इसको बड़ा सपोर्ट करके स्ट्रक्चर बनाया है. अगेन सुपरवाइजर स्कॉलर कोलैबोरेशन, हमने एक वर्किंग नॉर्म्स को प्रॉपरली सेट किया है. रेगुलर मीटिंग्स आपको बताया मैंने, we'll do a regular meeting जिसके अंदर हम रिव्यू करेंगे प्रोग्रेस, माइलस्टोन, चैलेंजेस एंड डायरेक्शंस, टास्क असाइनमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, मेंटरशिप को हम लोग कैसे रीडिफाइन कर सकते हैं उसको स्टडी करेंगे. रिव्यू एंड फीडबैक्स लेंगे और गोल सेटिंग्स करेंगे. गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम फॉलो इतना प्रॉपरली करते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर गोल है, उसको कैसे अचीव करना है, उसमें क्या गैप्स आ रहे हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, उसको बिल्कुल स्ट्रक्चराइज करके वी कीप ऑन कैरिंग फॉरवर्ड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कोलैबोरेट, टू अंडरस्टैंड विद योर गाइड सुपरवाइजर कि वो एक्चुअल में आप उसको समझा पाओ, उसका म्यूचुअल एथिकल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी. इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीइंग ऑन कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी. कोई स्कॉलर्स होते हैं जो मतलब दे आर आफ्टर देयर गाइड ऑन रेगुलर बेसिस. इट्स नॉट दैट. अगर आप गोल्स को सेट कर लें गाइड के साथ, मे बी ऑन व्हाट्सएप और मे बी एनीथिंग, यू सेंड इट अक्रॉस, तो कम्युनिकेशन रहता है, एक फ्रीक्वेंसी एग्री हो जाती है आपस में. सो वी फॉलो दैट. अब एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारे कोर्स वर्क के ड्यूरेशन के दौरान? अटेंड रेगुलर करिए. इवन इफ यू आर बिजी, यू गेट द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ द क्लास. और अगर आप कैंपस में आके कर रहे हैं वो आप करिए इफ यू वांट रिकॉर्डेड वर्जन, बट अटेंड करिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. it will become a very very good base for your entire PhD program, so don't miss it. This is what we suggest to the entire scholars. एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए. जो भी हम एक्टिविटीज प्लान करते हैं, हमने रिसेंटली वुमेन्स डे की एक्टिविटी करी, वी वर वेरी वेरी लाइक हैप्पी. देयर आर लॉट ऑफ
विमेन स्कॉलर जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया एंड उसमें दे शेयर देयर इंटायर एक्सपीरियंस विद अस. सो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पीयर ग्रुप के बारे में पता लगता है, अपने जो आपके साथ पीएचडी कर रहे हैं उनके बारे में पता लगता है. देन यू अंडरस्टैंड अबाउट द यूनिवर्सिटी, द प्रोसेसेस, एंड वो दैट एक्टिव पार्टिसिपेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. टाइमली सबमिशन ऑफ असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. हम इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रखते हैं बट उसको टाइमली सबमिट करवाने के लिए बोलते हैं ताकि आपका काम कंप्लीट होता रहे, पेंडिंग ना रहे. सो वी पुश यू फॉर दैट, वी हेल्प यू आउट फॉर दैट कि असाइनमेंट्स आपकी टाइमली कंप्लीट हो. एकेडमिक इंटीग्रिटी आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है. सो वी फॉलो दैट. एंड सेल्फ लर्निंग एंड डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सेल्फ लर्निंग बिकॉज अब आपका यूजी पीजी नहीं है जिसमें आपको कोई टीचर एवरी सेमेस्टर पढ़ाएगा या आपका करिकुलम है. इट इज ऑल अबाउट सेल्फ लर्निंग एंड रिसर्च एंड डिसिप्लिन टू कैरी इट फॉरवर्ड. अब आउटकम क्या रहेगा रिसर्च से पहले ऑफ योर कोर्स वर्क इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिसर्च फाउंडेशन आपको हम बना के देंगे, प्रिपेयर करके देंगे. आप एक रिसर्च के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी बिफोर यू स्टार्ट योर रिसर्च. साइनॉप्सिस को प्री प्रिपेयर करेंगे, अप्रूव आफ्टर कोर्स वर्क एग्जाम रहता है बट इसको प्री प्रिपेयर करेंगे. रेडीनेस फॉर थीसिस बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे थीसिस को बनाने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए, एंड एबिलिटी टू पब्लिश रिसर्च पेपर्स. आफ्टर यू कंप्लीट योर कोर्स वर्क पार्ट, दीज विल बी द entire foundation you will be covering, followed by इसमें आपकी क्लासेस अलग अलग लगेंगी which I will carry forward. एक जर्नी आपको बता दी है, कोर्स वर्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपने साइनॉप्सिस सबमिट करनी है, रिसर्च वर्क स्टार्ट करेंगे, पब्लिकेशंस करेंगे एंड थीसिस को फाइनली सबमिट करते हैं, फिर फाइनल वेब होता है. ये सिंपल स्टेप यूजीसी ने डिफाइन किए हुए हैं. इसको कॉम्प्लिकेट करना है तो वी कैन डू एनी ऑफ द वेज, इसको सिंप्लीफाई करना है वो भी हमारे हाथ में है. सो हमारा मेन फोकस इज टू सिंप्लीफाई ऑल दिस प्रोसेसेस. फ्लो चार्ट टू मेक द पीएचडी स्टडी फटाफट आपको समझाऊंगा. अब्स्ट्रैक्ट आता है सबसे पहले, उसको कंसाइज करते हैं 250 to 500 वर्ड्स में. इंट्रोडक्शन सेट करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर सेट करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया है. ये थीसिस का पार्ट होता है आपका. ऑब्जेक्टिव्स होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं कि आप थीसिस में क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हो, स्मॉलर मैनेजेबल है. दूसरा हाइपोथेसिस क्या है कि प्रपोज एक्सप्लेनेशन अजम्पशंस क्या क्या हैं, बाद में उसको टेस्ट करते हैं हम लोग कि हमने अजम्पशन किया ठीक था नहीं था, वो बाद में टेस्ट करेंगे. मेथडोलॉजी अप्रोच क्या ले रहे हैं, क्या टूल्स ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर्स क्या ले रहे हैं, वो उसके अंदर रहता है. उसके बाद वर्क प्लान कैसे रहता है कि आप उसको अलाइन कैसे कर रहे हो कि फर्स्ट मंथ हम ऐसे करेंगे, सेकंड मंथ ऐसा करेंगे. डीलिमिट कर देते हैं टाइटल जो मैंने आपको बताया, व्हाट योर स्टडी इंक्लूड एंड एक्सक्लूड वो डालेंगे. चैप्टर स्कीम्स को वेल डिफाइन करते हैं कि ईच चैप्टर ऑफ योर थीसिस पीएचडी थीसिस इज प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड. बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस कह लो उनको, वो एंड में डालते हैं कि हमने पूरी थीसिस के दौरान क्या क्या रेफरेंसेस यूज करे हैं और क्या क्या हमने बिब्लियोग्राफी, क्योंकि हम उन प्रीवियस ऑथर्स को क्रेडिट देते हैं कि उनसे हमने रेफरेंस दिया, so we have to give them a credit which is part of our bibliography. फाइनली आपकी एक प्लेजरिज्म रिपोर्ट होती है जो आपके थीसिस में लगती है कि दिस थीसिस इज बिलो 10% एंड ओरिजिनलिटी है एंड एथिकल एंड इंटीग्रिटी से इसकी राइटिंग करी गई है. सो ये प्लेजरिज्म रिपोर्ट्स में फाइनली आता है. ओके, वही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अटेंड ऑल सेशन विच वी टेल टू ऑल स्कॉलर्स, फॉलो एकेडमिक गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपको टाइम टू टाइम सिलेबस एंड ऑल दोस थिंग्स विल बी ईमेल टू यू. डिसिप्लिन मेंटेन करें, वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट गेट इनटू, इफ यू हैव एनी क्वेरीज contact the research department or your respective coordinators. अपने emails डालिए, emails को you'll get a very quick response, and you stay connected with the research department. आपको कोई भी query है, कोई चीज नहीं समझ आ रही है, understandable करना है, you go to the research department,
and be rest assured we'll respond you back with a very, very positive way. Okay, I will take question and answers. If anybody, one by one lenge, so that it's easy for everybody to ask questions. हो सकता है किसी का question ऐसा भी हो where we cover. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon, ma'am. Yeah, please tell me. सर क्या आप प्लीज हमें बताएंगे हमारी अब क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी कोर्स वर्क की? मैम इसके बाद आपको शेड्यूल आ जाएगा नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे एंड संडे आपका कोर्स वर्क का शेड्यूल रहेगा और वो आपके 200 आवर्स को डिवाइड कर देंगे उससे. ठीक है सर, सारे सब्जेक्ट्स का सेम ही क्लास पहले रहेगा? आपका मेथोडोलॉजी शुरू होगा, फिर जी सर. एथिक्स भी साथ साथ शुरू हो जाएगा. जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपका कोर सब्जेक्ट आएगा. ओके सर, थैंक यू. जी. तो सर हम हमारे गाइड से अभी कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं होते हैं? हाँ, वो हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर ही इसी तरीके से बनाया है कि पहले आप मेथोडोलॉजी करें, फिर एथिक्स करें, एंड उसके बाद देन वी सेंड यू अ फॉर्मल ईमेल ऑफ योर गाइड. आप उसके बाद हम आपको उनके साथ कनेक्ट कराते हैं. वी मेक अ फुल शेड्यूल फॉर यू टू कंप्लीट योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो. तो हमने इसको डिवाइड इसी तरीके से किया कि आप पहले इसके करके और देन यू गो फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक. ओके सर, थैंक यू. Hello, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yeah, please. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. हरनारायण जी, yeah, please. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा टाइमिंग क्या होगा क्लासेस का? Usually it is on weekend, depending upon the faculty availability. हम लोग bit early morning भी रखते हैं, evening भी रखते हैं. Okay. तो depending upon Right, sir. faculty होता है, because there are regular faculty of the university. तो वो as per schedule आपको वो 2 दिन पहले पता लग जाता है. सर you're easy to coordinate according to that. Okay. Yeah. अच्छा, अगर ऐसा पॉसिबल है तो सर आपका थोड़ा सा वॉइस इज ब्रेकिंग. इफ यू कैन reframe the question. राइट सर. थैंक यू. Yeah, सुरन जी. सर आपका वॉइस इज कमिंग टू लो. इफ आई कैन. जी सुरन जी. या सर ये जो आज पीपीटी आपने दिखाया ना, या ये प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिए. सर आपको ग्रुप में वो भी शेयर कर देंगे एंड वी विल सेंड यू द रिकॉर्डेड लिंक ऑफ द एंटायर सेशन आल्सो. वो तो बात ठीक है आपकी, ये हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा ना, हम देख सकते हैं अच्छी तरह इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं इसकी. जी हम भेज देंगे जी आपको. करने में क्या है जी सर मेरा भी एक क्वेश्चन है. जी. यस यू सर. सर जैसे कि मैं रेडियोलॉजी से हूँ, तो शायद यहाँ पे मे बी उसके कम स्टूडेंट्स होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट. तो मेरा एक कंसर्न है कि ये जितने भी आज यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ये क्या सारे उसी कोर्स के हैं या ये जो ये क्लासेस हो रही है क्या कॉम्बाइन होगा, मतलब मल्टीपल जो भी कोर्सेज है इनका क्या मतलब, मुझे ये समझ में नहीं आया अभी. आप रेडियोलॉजी से राइट? यस सर. I guess we have 7 ki 8 scholars हैं, because we will not take more than 7 or 8 scholars. I need to check it across. जो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास होती है और रिसर्च एथिक्स क्लास होती है वो कॉमन फॉर ऑल होती है. ओके. और आपकी जो रेडियोलॉजी की क्लास होगी वो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है. उसमें सिर्फ आप ही के बैचमेट्स एंड ग्रुपमेट्स होते हैं. ठीक सर. ठीक है ना? हाँ जी. सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी कोई और स्टूडेंट है कि मैं अकेली? 3 स्टूडेंट्स आते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. 3 स्टूडेंट्स है? Yes. ओके सर, थैंक यू. सर इट मीन्स कि जो हमारे ये एथिक्स एंड मेथोडोलॉजी क्लासेस है ये हमें कॉम्बाइन होगा जब तक टिल हमारा कोर्स वर्क खत्म हो जाएगा, राइट? यस, सबसे पहले मेथोडोलॉजी और एथिक्स ये कंबाइंड होगा आपका, फिर उसके बाद आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लास होती है. तो सर कोर्स वर्क में हमें स्पेसिफिक 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं क्या? 3 सब्जेक्ट्स है ना. पहला आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेकंड इज द रिसर्च एथिक्स, थर्ड इज द कोर सब्जेक्ट. आपका जो कोर सब्जेक्ट है रेडियोलॉजी. कोर सब्जेक्ट है. या तो उसका अलग होगा. ओके, थैंक यू सर. या आनंद सर. हाँ जी दीपक जी. आई हैव अ डाउट. मुझे एक चीज पूछनी थी, लाइक आफ्टर सिनॉप्सिस, ओके, how much time we will get to publish a paper? Right now, like we are doing some research papers and international conference also.
तो ये रिसर्च पेपर का टाइम पीरियड क्या होगा और इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, लाइक स्कोपस होगा या एबीडीसी, ये चीज थोड़ा जाननी थी। सर मैं आपको इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। हम लोग जो फोकस ऑन पब्लिशिंग द पेपर है वो हम आपकी सेकंड प्रोग्रेस रिपोर्ट में ही कर देंगे, विच इज योर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स वर्क एग्जाम। मीन जब आपसे कंप्लीट कर देंगे, पहले हम पेपर पब्लिशिंग को भी फोकस करेंगे, चैप्टर्स को भी। इसमें हम आपका ऑर्किड आईडी के थ्रू वी सबमिट इट अक्रॉस ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म। अगर आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है किसी का तो उसको IEEE फोकस करते हैं, अदरवाइज स्कोपस में फोकस करते हैं। जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हमारी सितंबर में फोकस्ड है तो उसको भी हम उसमें फोकस करेंगे। तो हम लोग आर्टिकल को मेन प्रेफरेंस देते हैं इन योर सेकंड प्रोग्रेस रिपोर्ट। एंड द टोटल नंबर ऑफ रिसर्च पेपर वी हैव टू पब्लिश 2 as per UGC norms। 2 as per। ओके। और जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रहेंगी आपकी तरफ से हमें दी जाएंगी या हम लोग अपनी तरफ से भी कर सकते हैं? हमारे एंड से भी होंगी, अगर आप खुद करना चाहते हो वो भी हम रेगुलर ऑप्शंस देते हैं। बट हम आपको 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कंप्लीट कराएंगे ड्यूरिंग योर अपना 3 years प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। एनीथिंग एल्स इफ अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है? So if anything required, आप मेरे को you can put it across on chat also. Else मैं इसका आपको presentation also and I will send you in the group the recorded version of the class। वो कल तक जाएगा because it take times to upload it। वो भी आपको share करेंगे। So we try and plan a wonderful coursework as well as after your completion हम ये प्लान कर रहे हैं कि we give you a good learning structure। So if you have any further queries, you can contact the research department। Dr. Vikramjit हैं, Kashish ma'am हैं, you can contact them if you have any kind of queries when it comes to your further processes। And if you have any queries, put up an email। Email is the best way to get answers to all your queries। हम आपको immediate response करेंगे and we make it sure that your query is resolved। So I wish good luck to everybody and thank you for joining in। So we catch up in next session and let's everybody go for it and have a wonderful PhD। Thank you sir, thank you Thank you, sir. 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 Thank you. Thank you very much, sir.